रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए फंड्स नहीं दे रही है, जबकि सियासत के लिए 18,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। टीआरएस हुकूमत की जानिब से नलगुंडा जिले में फ्लोरोसिस के मसले को हल करने के लिए इकदाम का जिक्र करते हुए वजीर तवानाई ने बताया कि रियासत की तश्कील के बाद से फ्लोरोसिस का एक भी केस दर्ज नहीं किया गया। उनका कहना है कि मिशन भागीरथता के जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया गया। साबिका हुक्मरानों ने अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। जगदीश रेड्डी ने बताया कि बीजेपी की रियासत में कोई जगह नहीं है। राजगोपाल रेड्डी बीजेपी में सिर्फ माहिदों के लिए शामिल हुए थे। उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए से एक खानदान खरीदने का भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया और कहा कि राजगोपाल रेड्डी ने 3 सालों में कोई तरक्याती काम नहीं किए, हत्ता कि कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तक तकसीम नहीं किए। जगदीश रेड्डी ने ज़ेरे इल्तिवा कामों, सड़कों और तरक्याती प्रोग्रामों को मुकम्मल करने के लिए मुनुगुडु में टीआरएस पार्टी की जीत को जरूरी करार दिया है। అక్కడ పెద్ద చర్చ జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే తప్పకుండా ప్రజలు కోరుకుంటారు తమను ఆదుకునే ప్రభుత్వాలు రావాలని, తమ జీవితాల్లో కొంత వెలుగు రావాలని, అది ప్రభుత్వ పాలసీల ద్వారా రావాలని, ప్రభుత్వాలు మేము పెట్టుకునేది దాని కొరకు అనే విషయం ప్రజలకు తెలుసు కాబట్టి తప్పకుండా ప్రజలు కోరుతారు. రైతాంగం ప్రజలు ఎక్కడ మంచి జరిగితే, ఎక్కడ అభివృద్ధి జరిగితే దాని గురించి వెళ్ళి మాట్లాడుకోవడం, అది మాకు కావాలని కోరుకోవడం సహజమైన విషయం. అటువంటి పరిస్థితులలో ఇవాళ కేసీఆర్ గారి పేరు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు చర్చించుకోవడం, ప్రారంభంలో అక్కడి ప్రభుత్వాలు కూడా హానెస్ట్గా ఉన్నప్పుడు, రాజకీయ భేదాలు లేనప్పుడు, రాజకీయపరమైన ఆలోచనలు లేకుండా స్వయంగా వచ్చి తెలంగాణ వచ్చి తిరిగి చూసిపోయారు. మిషన్ భగీరథ కావచ్చు, మిషన్ కాకతీయ కావచ్చు, ఈ 2 పథకాలని వచ్చి చూసి పొగడిపోని ఒక్క రాష్ట్రం కూడా లేదు. అది ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని తేడా లేకుండా భారతదేశంలో అన్నిటికన్నా 28 రాష్ట్రాల వాళ్ళు వచ్చి ఇది జరుగుతుందా, ఇది నిజమేనా, ఉత్త ప్రచారంలో ఉందా అన్నీ చూసిపోయినారు. మన గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వచ్చి ఎక్కడ ఏ మారుమూల గిరిజన తండా, గోండు, గూడెం 10 గ్రామాలున్నా సరే, 10 ఇండ్లున్నా సరే అక్కడికి మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్ పోయి అక్కడ మంచినీళ్ళు ఇస్తున్న విషయాన్ని बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेरे क़यादत लगाए गए रोजगार मेले में बजरिए ऑनलाइन शिरकत की। आपको बता दें कि वजीर आजम ने एक ही दिन में 75,000 नौजवानों को मुलाजमत की तकर्रुरी के दस्तावेजात हवाले करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है। बंडी संजय कुमार ने इस प्रोग्राम में शरीक होने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इसकी तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। ఇది భారతదేశ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా మునిగిపోయే రోజు. చాలామంది చూస్తుంటే పేదరిక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్, ఎస్టీలకు సంబంధించి చాలామంది యువకులు వచ్చారు. ఒక చెల్లె వాళ్ళ నాన్నగారు ఆటో డ్రైవర్, ఇంకోటి చాలా వాళ్ళ నాన్న హోటల్లో పని చేస్తారంటున్నారు. ఎక్కడ పైరేవులోకి తావు లేకుండా గతంలో విషయంలో ఇన్ని సంవత్సరాల కాలంలో ఎక్కడ ఇటువంటి జరగలేదు. ఒక పద్ధతి ప్రకారము అర్హులైనటువంటి అభ్యర్థులందరికీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వడము, ఎలాంటి పైరవులు లేకుండా, మధ్యవర్తిత్వం లేకుండా, లేకుంటే ఎంపీ లెటర్ రాయాలి, ఎమ్మెల్యే లెటర్ రాయాలి, 10 లక్షలు 5 లక్షలు పోస్టింగ్కు, ప్రమోషన్కి అన్ని పైసలే. ఇలా ఎవరికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారో వారికి తప్ప వాళ్ళ కుటుంబాలు తప్ప ఉంటాయి. కాబట్టి నిజంగా చాలా వాళ్ళ కుటుంబాలు అందరూ కూడా సంతోషపడుతున్నారు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతుంది. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం చూస్తాం మనం, ముఖ్యమంత్రి నోటికి హద్దు ఉంటుంది, పద్దు ఉంటుంది. ఎవరు చేస్తే రేపు అసెంబ్లీలో 70,000 ఉద్యోగాలు రేపే ఖాళీ ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్నారు, రేపటి ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తాను, మొత్తం 100 ఇచ్చే మాట్లాడుతుంది. విశ్వాల్ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఏమైంది? 2 లక్షల ఉద్యోగాలు పూర్తి ఇస్తానో ఏమైంది? నీ ఇంట్లో మాత్రం 5 ఉద్యోగాలు ఉంటాయి. సిగ్గుండాల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కనీసం నిన్న గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ 8 సంవత్సరాలు పెట్టినావు. ఇంకా గ్రూప్ 1 ఉద్యోగాన్ని, గ్రూప్ 1 పరీక్షలు కూడా నిర్వహించాలని చేతగాని స్థితిలో ఇవాళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నువ్వు సాధించింది ఏంటి? ఇవాళ ఇన్ని వేల ఉద్యోగాలు ఎక్కడ చిన్న కంప్లైంట్ ఎక్కడన్నా ఎక్కడ చిన్న ఆరోపణ, గ్రూప్ 1 ఉద్యోగం పెడితే మొత్తం ఆరోపణలు వచ్చాయి. నువ్వు సాధించింది ఏంటి? మొత్తం హిందువుల సెంటిమెంట్ నాశనం చేసినావు. ఇవాళ పుస్తల తాడు దించినావు, కమ్మలు దించినావు, బొట్టు దించినావు, గాజులు దించినావు. నువ్వు సాధించింది అదే లాస్ట్ మిగిలింది. నోటిఫికేషన్ ఏకెక్కిస్తావు, దాన్ని ఏదో పొరపాటు చేస్తావు, మళ్ళీ కోర్టుకు నీ వాళ్ళని కోర్టు పంపుతావు, మళ్ళీ ఆపేస్తావు. వాళ్ళకి ఒక్క గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ ఇస్తా అంటే వాళ్ళు ఎంతమంది పేదోళ్ళు, ఇంట్లో భార్య పిల్లల తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా వ్యవసాయం కూలి పని చేసుకుంటారు.
ఉన్న ఆస్తిపాస్తుల మీ కోచింగ్ సెంటర్లో మీ కోచింగ్లకు పైసలు నిలబెట్టి ఈరోజు ఉద్యోగం మన ఎగ్జామ్ రాస్తే లాస్ట్కి దాన్ని ఆశ చేస్తారు. అట్టి అనేది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకో, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత కూడా ఉద్యోగుల కోసం నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టే పాపం మట్టి అనేవాళ్ళు. గుర్తు చేయాల స్ఫూర్తి నీకు, దేశ ప్రధానికి స్ఫూర్తి. దేశంలో ఏ విధంగా ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నామో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిజంగా నువ్వు తెలంగాణ వాయువు అయితే నీకు తెలంగాణ రక్తం ప్రవహిస్తే ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉండు. నన్ను నోరు కాదు తాటి మట్ట నువ్వు భావించకుంటే వీళ్ళు వెంటనే నియామకాలు జరపాల్సిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తాం. कांग्रेस के रुकने पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने पलवाई श्रवंती की ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी को यकीनी करार दिया है। साबिक़ टीपीसीसी सदर ने ज़िमनी इंतखाब से कबल कोई मुतनाज़ा तबसरा या बयानबाजी से इज्तनाब बरतने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि पार्टी क़यादत इस बात को यकीनी बनाएगी कि पार्टी कायदीन इस तरह के बयानबाजी से गुरेज करें। उन्होंने बताया कि चाहे टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी हो या फिर MP कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी हो, वो जो भी कहेंगे उसका AICC ख्याल रखेगी। MP ने बीजेपी और TRS की कारकर्दगी पर भी सख्त तनकीद की है और ये सवाल किया है कि दोनों पार्टियों ने पिछले 8 सालों में अवाम के लिए क्या किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने उम्मीद जताई है कि अवाम इस बार कांग्रेस को मौका देगी और ज़िमनी इंतखाब की उम्मीदवार पलवाई श्रवंती को भारी वोटों से जिताएगी। एरिया में जो कंबाइंड नलगोंडा और कंबाइंड खम्बम डिस्ट्रिक्ट में एक नई रेलवे लाइन इन प्रिंसिपल सैंक्शन आई है, उसका भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसके बाद फाइनेंशियल सैंक्शन भी आ रहा है। मैं इस खुशखबरी आप द्वारा मीडिया द्वारा वहाँ के लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये 93 किलोमीटर्स न्यू सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड लाइन है। इसके लिए करीब करीब 1300 करोड़ लगेंगे। अभी कोई भी रेलवे लाइन अगर नया रेलवे लाइन लगाना है तो पहले उसकी इन प्रिंसिपल सैंक्शन आना है, उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, उसके बाद काम शुरू होता है। अभी एक स्टेप हमने आगे लिया है और इन प्रिंसिपल सैंक्शन आ गया, उसकी डिटेल्स मेरे पास है। आप सभी भी ध्यान में रखिए और वहाँ के लोगों को पता चलनी चाहिए कि हमने एक नया रेलवे लाइन के लिए इन प्रिंसिपल सैंक्शन हमारी एफर्ट से हुआ है। थैंक यू। संगारेड्डी के कांग्रेस MLA जग्गा रेड्डी, जो अक्सर व बेशतर पार्टी क़यादत से नाराज नजर आते हैं, TPCC रहनुमा रेवंत रेड्डी के हमरा गांधी भवन में गपशप करते नजर आए। कांग्रेस पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाने के लिए TPCC कायदीन का एक इजलास गांधी भवन में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में कायदीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया है। इस दौरान TPCC कायदीन से अक्सर व बेशतर नाराज और खफा रहने वाले MLA जग्गा रेड्डी खुशगवार अंदाज में TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी के हमरा खुशगपियों में मसरूफ नजर आए। दोनों कायदीन का ये वीडियो मंजर आम पर आने के बाद कांग्रेस कायदीन ने इसे एक अच्छी पेशरफ्त करार देते हुए मसरत का इजहार किया है। बीजेपी MLA इटेला राजेंद्र ने TRS सरबराह KCR पर दीगर पार्टियों के अवामी नुमाइंदों को खरीदने का इल्जाम लगाया है। 3 नवंबर को मुनक़िद ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार की जीत को यकीनी करार देते हुए उन्होंने कहा कि जब भी ज़िमनी इंतखाब होता है KCR साजिशें करते हैं, ताहम इस बार उनकी कोई साजिश काम नहीं आएगी। अवाम बीजेपी को जिताने के लिए बिल्कुल तैयार है। हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगियों को उन्होंने नाक़िस करार दिया है और कहा है कि मुकामी इदारों को कमज़ोर किया जा रहा है। अपोजिशन के अराकीन असम्बली को कानून साज असम्बली में जाने की इजाज़त तक नहीं है। बेरोजगारी, कबायलियों के मसाइल की यकसोई न करने पर हुजूराबाद MLA ने KCR पर शदीद नुक्ताचीनी की है। మళ్ళీ యువకుల ఆత్మహత్యలు కొనసాగుతాయి। మళ్ళీ మా గిరిజనుల భూములు గుంజుకొని వాళ్ళ రక్తాన్ని కళ్ళు చూసే పరిస్థితి వస్తుంది। కేసీఆర్ గారిని గెలిపిస్తే మా VRAలు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది। ఇలా కేసీఆర్ గారిని గెలిపిస్తే మా RTC కార్మికులు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది। ఇలా కేసీఆర్ గారిని గెలిపిస్తే మా కౌలు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది। ఇవాళ కేసీఆర్ గారిని గెలిపిస్తే వడ్లు కొనం ఏం చేసుకుంటావో చేసుకోపో అని చెప్పే పరిస్థితి వస్తుంది। కేసీఆర్ని గెలిపిస్తే ఇవాళ రైతు రుణమాఫీ చేసే పరిస్థితి లేదు। కేసీఆర్ని గెలిపిస్తే 8.5 సంవత్సరాలుగా ఏ డబుల్ బెడ్ మీద కట్టకుండా పేదల్ని ఇలా దరిద్రంలో ముంచిండో అదే కొనసాగుతుంది। ఇవాళ కేసీఆర్ని గెలిపిస్తే మునుగోడులో మేము తిరుగుతూ ఉన్నాం। 30 ఏళ్ల క్రితం మా హుజురాబాద్లో ఎట్లాంటి రోడ్లు ఉన్నాయో, ఏ అభివృద్ధి జరిగిందో అంతకంటే దరిద్రంగా ఈ మునుగోడులో ఉన్నది। ఇవాళ గంటకు పోయే ప్రయాణం 3 గంటలు అవుతా ఉంది। ఏం ముఖం పెట్టుకొని ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా వచ్చి నేను లెంకలపల్లిలో ఉంటా, నిజంగా నేను మీకు సోయి ఉంటే
ఇవాళ నీది ఆ అద్దాల మేడలో కూర్చున్నావు మీరు, ప్రగతి భవన్లో మీరు కూర్చొని, ఫామ్ హౌస్లో కూర్చొని మీరు మునుగోడులో ఏముందో మీకు తెలియలేకపోయింది, ఇతర ప్రాంతాలు ఎట్లుందో మీకు తెలియలేకపోయింది. కానీ ఇవాళ ఇక్కడ కొత్త మీకు తెలుస్తా ఉంది. లెంకలపల్లిలో 3 రోజుల పాటు ఉంటాను కదా ముఖ్యమంత్రి గారు, నేను అంటున్నా ఏ మాత్రం నీకు నిజాయితీ ఉన్నా, నీకు దమ్ముంటే మునుగోడులో అన్ని గ్రామాలు తిరుగు, రోడ్లు ఎట్లున్నాయి, వాళ్ళ బతుకులు ఎట్లా ఉన్నాయి. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल से तेलंगाना में दाखिल हो रही है। ये यात्रा 19 असेंबली और 7 पार्लिमानी हलकों का अहाता करेगी। कांग्रेस साबिक सदर राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया है, जिसे कांग्रेस के मुल्क में इख्तिदार में आने का एक अहम कदम समझा जा रहा है। रायचूर कर्नाटक से भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना के महबूबनगर जिले के गुड्डाबेलूर पहुंचेगी। टीपीसीसी की जानिब से कर्नाटक और तेलंगाना की सरहद पर वसीतर इंतजाम किए गए हैं। यात्रा कल दोपहर से 26 तारीख तक वक्फा लेगी और 27 की सुबह गुड्डाबेलूर में इसका आगाज होगा। ये मक्तल पहुंचेगी और तेलंगाना में 16 दिनों तक जारी रहेगी। राहुल गांधी रोजाना 20 से 25 किलोमीटर की पद यात्रा के साथ आगे बढ़ेंगे। बताया गया है कि राहुल गांधी नेकलेस रोड पर कॉर्नर मीटिंग में हिस्सा लेंगे, जबकि बोयनापल्ली में शब बसर करेंगे। टीपीसीसी कैडर ने कौमी इत्तेहाद के मकसद के साथ तेलंगाना में दाखिल होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के लिए तमाम तर इंतजाम किए हैं और इसके लिए खुसूसी कमेटियां भी तश्कील दी हैं। टीआरएस एमएलए गडारी किशोर ने इंतखाबात के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों पर डार्क डील्स करने का इल्जाम लगाया है। टंगाथुर्ती टीआरएस एमएलए का कहना है कि साबिक़ ज़िमनी इंतखाब फर्जी था और इस ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के लिए आने वाले अपोजिशन रहनुमा माजी में हल्के की तरक्की के लिए और मुस्तकबिल में हल्के की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक़ सवाल करने पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस एमपी कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का फोन कॉल वायरल होने के बाद सियासी गोशों में हलचल मची हुई है। एमएलए ने कोमटी रेड्डी को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि दोनों पार्टियां इंतखाबात के दौरान डार्क डील्स करती हैं। आपको बता दें कि ज़िमनी इंतखाब के लिए कुल 147 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके पेश नज़र इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। सियासी सरगर्मियां बयानबाजियां तेज तर हो चुकी हैं। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब टीआरएस पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। प्रजा शांति पार्टी के सदर के पॉल ने उनकी गाड़ी को रोकने पर इलेक्शन ऑफिसर्स व दीगर पर सख्त बरहमी जताई है। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब में प्रजा शांति पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर के पॉल मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने आज चंदूर में इंतखाबी मुहिम चलाई। बताया गया है कि चंदूर जाने के दौरान कुछ अफसरान ने उनसे गाड़ी रोककर पूछताछ की, जिस पर वो बरहम हो गए और खुद को तेलंगाना के मुस्तकबिल के वजीर आला बताते हुए प्रजा शांति पार्टी के सरबराह बहस व तकरार पर उतर आए। हुकाम ने बताया कि के पॉल ने ड्यूटी पर तैनात एहलकारों के साथ न सिर्फ बहस व तकरार की, बल्कि उनके शनाख्ती कार्ड भी छीन लिए। कुछ अफसरान की इस मामले में मुदाखलत के बाद वो वहां से रवाना हो गए। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई शर्मिला ने सवाल किया है कि बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार और कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर होने वाले करप्शन पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं। वाई शर्मिला ने इल्जाम लगाया है कि मुल्क का सबसे बड़ा घोटाला कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर हुआ है। प्रोजेक्ट की तामीर में तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए की बदउनवानी की गई है। केसीआर ने प्रोजेक्ट के रीडिजाइन करने के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। वाईएसआर टीपी कायद ने तबसरा किया है कि केसीआर के साथ साथ बंडी संजय कुमार और रेवंत रेड्डी भी बदउनवानी में बराबर के शरीक हैं। वाज़ेह है कि शर्मिला सीजीए और सीबीआई से कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानी की शिकायत कर चुकी हैं और दोनों इदारों ने उन्हें इस मामले की तहकीकात का तयख्खुन दिया है। मरकज में बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी से वाई शर्मिला ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट स्कैम की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। మేరకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసి నివేదికని అందించింది మేము. వాళ్ళ మేరకు వాళ్ళు చేయగలము, చేస్తాము అన్న హామీ ఇచ్చారు. కాగైతే మరి ముఖ్యంగా మేము తప్పకుండా రంగంలోకి దిగుతాము, తప్పకుండా ఒక టీంని కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. ఇది మేము కూడా లైట్ గా తీసుకోబోము. 1000 కోట్లు ఈ రోజు మునుగోడులో 1000 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది. మన దేశంలోనే ద బిగ్గెస్ట్ ఎలక్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ తెలంగాణ టుడే. వాస్తవం కాదా? సంతలో పశువులు, వీళ్ళంతా అమ్ముడుపోయే వాళ్ళంతా పశువులు, సంతలో పశువుల్లా అమ్ముడుపోతున్నారు.
భయపడేది కాదు రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ. ఏ లీడర్ వచ్చినా ఏ లీడర్ రాకపోయినా 119 కాన్స్టిట్యున్సీలో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ పోటీ చేస్తుంది. ప్రజల పక్షాన నిలబడుతుంది, ప్రజల పక్షాన కొట్లాడుతుంది రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ. నేను మునుగోడులో ఎవ్వరికి మద్దతు ఇవ్వడం లేదు. ఈయనకంత సీన్ ఉందమ్మా, ఈ కేసీఆర్ కి అంత సీన్ ఉందా? దేశ రాజకీయాలను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడా? భారతీయ ఏమిటి రాష్ట్ర సమితియా? బందిపోట్ల రాష్ట్ర సమితి. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक फ्लोर लीडर मोहम्मद वाजिद हुसैन ने महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद अजला के सरकारी व खानगी स्कूल्स के असातिज़ा से MLC इंतखाब के लिए अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने की अपील की है। कांग्रेस कायद ने अपने बयान में कहा है कि GHMC दफ्तर में GHMC कमिश्नर व हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर लोकेश कुमार का एक अजलास मुनक़िद हुआ। महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद में 2023 में मुनक़िद असातिज़ा हल्के के MLC इंतखाबात के लिए तमाम टीचर्स को अपना नाम फहरिस्त में दर्ज करवाने के लिए इक़दाम करने का इस इजलास में फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से बतौर असातिज़ा खिदमात अंजाम दे रहे तमाम अफराद अपना नाम दर्ज करवाने के अहल हैं, वो ऑनलाइन या फिर MRO ऑफिस में अपना नाम एनरोल करवा सकते हैं। मोहम्मद वाजिद हुसैन ने इस अमल की तफसीलात बताई हैं और असातिज़ा खानगी व सरकारी स्कूल से अपील की है कि वो अपने जमहूरी हक के लिए अपना नाम दर्ज करवाएं ताकि 2023 में होने वाले MLC इंतखाबात में वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। मसला टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के फॉर्म्स कहाँ पर मिलेंगे? तो हमें हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर ने कहा कि मुताल्लिक़ा MRO ऑफिस में ये फॉर्म्स अवेलेबल रहेंगे और ऑनलाइन पर भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि आपका जो एनरोलमेंट का जो ग्राफ है बहुत ही गिरा हुआ है। ख़ास तौर पर आप लोग हमारे जो जनरल इलेक्शन के बारे में अवेयरनेस के लिए आप लोग हमारे साथ जो असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो, इस सिलसिले में आप लोग हमें अवेयरनेस के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। लेकिन जब टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में एनरोलमेंट का मसला है, ये काफ़ी बहुत ही आप लोगों का जो एनरोलमेंट का जो गिराफ है बहुत ही गिरा हुआ है। मैं ख़ास तौर पर महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, आरा डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम टीचर्स जो अपने स्कूल्स में पिछले 3 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं या दे रहे हैं, आप लोग फौरी तौर पर अपने वोट के लिए, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपने वोट के लिए अपने फॉर्म फिलअप करें और MRO ऑफिस में या जो ऑनलाइन तरीके से या आपके मुताल्लिक़ा GHMC के ऑफिस में या आपके म्यूनसिपल ऑफिस में अपने फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। तो मैं फिर एक मरतबा महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम टीचर्स से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप फौरी तौर पर अपने टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए एनरोलमेंट करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग और पंजागुट्टा पुलिस ने मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और 40 ग्राम कोकेन जब्त कर ली है। मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पुणे, मुंबई, हैदराबाद में ड्रग्स फरोख्त करने वाले अफराद को पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि नाइजीरियाई बाशिंदा गैर कानूनी तरीके से मुंबई में मुकीम था और वो मंशियात फरोख्त किया करता था। वो अक्सर हैदराबाद आता और दीगर को मंशियात सप्लाई करता। पुलिस ने नाइजीरियन के पास से मंशियात हासिल करके रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर फरोख्त करने वाले 5 अफराद की शिनाख्त कर ली और उन्हें गिरफ्तार करते हुए 40 ग्राम कोकेन, सेल फोन्स जब्त कर लिए जिनकी मालियत 5 लाख रुपये बताई गई है। आज अपना हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग ऑफिशियल्स DCP चक्रवर्ती साहब और राजेश साहब और रमेश रेड्डी साहब, उनका टीम पूरा मिलके एक इंटरनेशनल ड्रग पेडलर को पकड़ा है। उनका नाम मोहम्मद सौरी वाकरी है। ये 2013 में मुंबई आए हैं। आने के बाद मीरा रोड मुंबई में अफ्रीकन रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। वहाँ अपूर्वा उपाध्याय या अंधेरी का रहने वाले थे। ये दोनों मिलके ड्रग पेडलिंग स्टार्ट किया वहाँ मुंबई में। फिर
तीन चार साल के बाद पुणे शिफ्ट किए ये लोग। पुणे में कंज्यूमर्स बहुत है बोल के पुणे बेस शिफ्ट करके हैदराबाद का कंज्यूमर्स और पुणे का कंज्यूमर्स और मुंबई का कंज्यूमर्स को ये लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। मोस्टली कोकाइन ड्रग ये लोग पेडलिंग कर रहे हैं। अभी आज मोहम्मद तौर बाकरी से 40 ग्राम्स कोकाइन सीज किए अपने ऑफिसर्स और 8 सेलफोन्स भी सीज किए। मैं हैदराबाद शहर का पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी अपना हैदराबाद में कोई ड्रग का पेडलिंग कर रहे हैं नहीं तो कंज्यूम कर रहे का इंफॉर्मेशन है तो आप ये हैदराबाद नार्कोटिक एनफोर्समेंट विंग ऑफिसर्स को बता दीजिए। उनका नया सेल नंबर भी आप लिख लीजिए 8712 661 601 8712 661 601। संगारेड्डी जिले में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाकये में एक खातून ने अपनी 1 साला बेटी के हमरा कुएं में छलांग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया मोबूडमपल्ली मंडल में पेश आया है। 23 साला अंबिका ने अपनी बेटी नक्षत्रा को जरई कुएं में फेंक दिया और फिर कुएं में छलांग लगा दी। हफ्ते की सुबह चिरागपल्ली पुलिस ने नाशक को कुएं से निकाला है। पुलिस को शुबा है कि खानदानी तनाजात के सबब अंबिका ने ये इंतहाई इकदाम किया होगा। नाशक को पोस्टमार्टम के लिए एरिया अस्पताल जहीराबाद मुंतकिल किया गया है और पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मुनुगुडू के टीआरएस उम्मीदवार की जानिब से यादाद्री मंदिर को 300 अफराद को ले जाने का इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोट लिया है। कमीशन ने टीआरएस के खिलाफ केस दर्ज करने की हिदायत दी है और कहा कि यादाद्री ले जाने के अखराजात टीआरएस उम्मीदवार के अखराजात के खाते में डाले जाएंगे। इसरो के तारीखी सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 को छोड़ने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस रॉकेट के जरिए पहली मरतबा कमर्शियल सैटेलाइट्स छोड़े जाएंगे जिनका वजन 5400 किलो होगा। उल्टी गिनती का आगाज कल शब 12:07 पर हुआ। ग्लोबल सेटकॉम कंपनी वन वेब के 36 छोटे ब्रॉडबैंड मवासिलाती सैटेलाइट्स को हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन कलाई मरकज से छोड़ा जाएगा जिनका ताउन भारती एयरटेल की जानिब से किया जा रहा है। वजीर IT तारक रामाराव ने फ्लोरोसिस से मुतासिरा एक लड़की को मुलाजिमत के सिलसिले में वजीर सेहत हरीश राव को फ़ोन किया। उन्होंने इस लड़की की तफसीलात से उन्हें वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि लड़की की मज़ीद तफसीलात व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी गई हैं। एक माजूर लड़की को चंडूर PHC में मुलाजिमत के सिलसिले में वजीर तारक रामाराव ने हरीश राव से दरख्वास्त की। PHC లేదా కట్టుపల్లి మండల కేంద్రంలో మండలం మొన్న పడతగానే పని అన్న మరి ఆడ నేను చండూరులో ఉన్నదా చండూరు పోయేస్తావా పక్కన రైట్ పెట్టిస్తా ఒక నిమిషం హరీషనకి నన్ను నా ఫోన్ చదువుతావా నువ్వు ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేస్తావా నువ్వు ఏదో కరెక్ట్గా చెప్పు నాకు కాదు బిడ్డ ఇప్పుడు నువ్వేం కావాలి నీకు చదువుతావా నీకు ఉద్యోగం కావాలి ఏమిటిది కావాలి నాకు కావాలన్నా పెన్షన్ వస్తుందా నీకు హలో బావ ఒక రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి గట్టుపల్లి నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి పేరు యశోద షీఈ్ ఫిజికలీ డిజేబుల్డ్ కానీ చదువుకున్నది మంచిగా చదువుకున్నది ఆమె ఇదివరకు కామినేనిలో GNMగా చేసిందట చెండూరు PHCలో ఒక ఉందట వేకెన్సీ ఏదో ఉన్నట్టుంది నేను ఒక పని చేస్తాను నేను ఇప్పుడే మీకు వాట్సాప్ చేస్తాను కొద్దిగా మినిట్ పంపినా థ్యాంక్ యూ బాబు థ్యాంక్ యూ మీటింగ్ మంచిగా भुवनगिर के कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मुनुगुडू असम्बली हलके के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में सनसनीखेज तबसरा किया। उन्होंने कहा कि मुनुगुडू में कांग्रेस हारेगी और उनका भाई जीत जाएगा। उन्होंने तबसरा किया कि हारने वाली सीट के लिए इंतखाबी मुहिम इसकी वजह है।
वेंकट रेड्डी, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, उनसे मुलाकात करने वालों से ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस हल्के से कांग्रेस हारेगी। उन्होंने कहा कि अगर वो जाकर इंतखाबी मुहिम चलाते हैं तो मजीद 10,000 वोट हासिल होंगे, मगर कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। हारने वाली सीट के लिए मुहिम क्यों चलाई जाए? वो हल्के में पदयात्रा करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में हर एक अलग अलग ग्रुप है। उन्होंने कहा कि वो 25 साल से सियासत में हैं। शहर में सदर उत्सव के लिए यादव तबके की जानिब से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस फेस्टिवल में बड़े भैंसों को तैयार किया जाता है जो मरकज़ी तवज्जो बने होते हैं। हैदराबाद में यादव तबके की तहजीब और कल्चर की अक्कासी करने वाले इस फेस्टिवल की काफ़ी अहमियत है। हरियाणा के भैंसे को इस फेस्टिवल में शहर लाया गया है। सदर फेस्टिवल के मौके पर पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दीगर इलाकों से भैंसों को लाया गया है। टीआरएस लीडर अर्जुन यादव ने भी इन भैंसों का मुशाहिदा किया। साथ ही भीम, सरताज, दारा जैसे भैंसे भी 27 अक्टूबर को मुशीराबाद और नारायणगुड़े में होने वाले फेस्टिवल में मरकज़ी तवज्जो बने होंगे। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, काम में आसानी पैदा हो रही है, लेकिन बाज़ औक़ात ये आसानियाँ मुश्किल में भी तब्दील हो रही हैं। टेक्नोलॉजी के कमाल की वजह से ये मुमकिन हो रहा है। बाज़ार में इन दिनों एक नई मशीन आई है जिसके ज़रिए किसी भी शख्स की दस्तखत की हूबहू नकल की जा सकती है। इस मशीन के आने के बाद चेकबुक और अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत के दौरान चौकसी ज़रूरी है। कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ने SC/ST/BC मुलाजमीन के मसाइल पर सिंगारनी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एक गोल मेज़ इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और इनके दस्तूरी हुकूक़ से इन्हें महरूम किया जा रहा है। कन्फेडरेशन के सदर महेश राज ने सिंगारनी के सदर नशीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुनुगुडू की इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी और टीआरएस के कारकुनों में बहस व तकरार हो गई। चोटुपल मंडल के JK इलाके में एक दूसरे पर इन कारकुनों ने हमला कर दिया। तरक्की के मामले में रुकन असम्बली शेखर रेड्डी पर नरसैया गौड़ ने बरहमी का इजहार किया और उनसे सवालात किए, जिस पर नरसैया गौड़ की इंतखाबी मुहिम में टीआरएस कायदीन ने रुकावट पैदा की। जिला जगतियाल में पुलिस ने स्टूडेंट एकेडमी एजुकेशनल सोसाइटी की तलाशी ली और बाज़ दस्तावेज़ात जब्त किए। ये कार्रवाई जुमे की शब की गई। मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों को फ़र्जी तालीमी असनाद सरबराह करने के इल्ज़ामात के बाद नलगुंडा पुलिस ने एकेडमी की तलाशी ली और बाज़ दस्तावेज़ात व असनाद जब्त किए जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के हैं। एकेडमी के मालिक खलील को हिरासत में ले लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख अफराद के लिए भर्ती की एक बड़ी मुहिम रोजगार मेले का किया आगाज। इस मौके पर पहले मरहले में भर्ती किए गए 75,000 अफराद को मरकजी सरकार के मुख्तलिफ ओहदों के लिए तकर्रुरी के मरासिले किए गए सुपुर्द। हैदराबाद के अहम और AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप के मैच को लेकर BCCI पर किया तंज। ओवैसी ने कहा है कि हिंदुस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रही है, इसे वहां भी नहीं था खेलना। काले धन को जायज बनाने और दहशतगर्दी की माली एआनत पर नजर रखने वाले इदारे FATF ने म्यांमार को रखा है ब्लैक लिस्ट में और मेंबरों से कहा है कि वो म्यांमार से लेन देन और कारोबारी ताल्लुकात में मजीद बरतें एहतियात। अब पाकिस्तान ने खुद को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकाल लिया गया है। ये इकदाम पेरिस में FATF के इजलास के दौरान आया है सामने। पाकिस्तान को 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों को माली मावनत को रोकने में नाकामी पर डाल दिया गया था ग्रे लिस्ट। मध्य प्रदेश के रेवा जिले में कल देर रात बस के एक हादसे में 15 अफराद हलाक और 35 हुए जख्मी। इत्तला के मुताबिक ये बस जबलपुर से रेवा के रास्ते पर प्रयागराज जा रही थी, एक ट्रेलर से टकरा गई। जिला इंतजामिया जाए हादसे पर फौरी तौर पर पहुंच गया और राहत का काम कर दिया शुरू। तमाम जख्मियों को थेंतार और रेवा के सिविल अस्पताल में कर दिया दाखिल। शाहजहांपुर में जिले हेडक्वार्टर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बोलाई अकोडिया रोड पर रात 3 बजे एक तेज रफ्तार जीप बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही हो गई मौत और 3 दीगर हो गए शदीद जख्मी।
जामिया मिलिया इस्लामिया की मशहूर व मारूफ रिहायशी कोचिंग एकेडमी सेंटर फॉर कोचिंग एंड कैरियर प्लानिंग के 16 उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 का पास कर लिया है इम्तिहान। दरगाह अंजुमन कमेटी के एहलकार का बेटा गिरफ्तार, दहशतगर्दों को पनाह देने का है इल्जाम। जराये के मुताबिक तौसीफ चिश्ती पर पंजाब के एक बदनाम जमाने मुजरिम को पनाह देने और जराइम में मलूस होने के इल्जाम में पंजाब पुलिस ने किया है गिरफ्तार। झारखंड में फिर एक बार इंसानियत को शर्मसार करने वाला पेश आया वाकया। जुमेरात की शाम तकरीबन 10 लोगों ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की के साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई इस्मतदरी की। तिबी मुआयने में बच्ची के साथ रेप की है तस्दीक और किसी को भी नहीं किया गिरफ्तार। धनतेरस के मौके पर रिलायंस जियो ने राजस्थान के लोगों को एक खास दिया है तोहफा। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 22 अक्टूबर को राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ मंदिर में 5G सर्विस का किया आगाज। ये राजस्थान के राजसमंद जिले में लॉन्च के साथ ही सारिफिन को इस इलाके में 5G खिदमात हो जाएंगी शुरू।